باپ بیٹے روح القدس کے نام میں آمین۔ میرے عزیز و مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام عرض ہے۔ جس طرح کہ ہم اپنی بائبل اسٹڈی کو جاری رکھے ہوئے ہیں، تو آج ہم حزقیال نبی کی کتاب کی اسٹڈی شروع کرتے ہیں۔ اس میں ہم دیکھیں گے تاریخی پس منظر، مواد، تباہی سے پہلے، تباہی کے بعد، اور پھر بائبل مقدس میں حزقیال کی کتاب کیا کہتی ہے، اس کے اہم نکات جو ہے ان پر دھیان و گیان کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم لاسٹ میں دیکھیں گے کہ حزقیال نبی کی کتاب کیا کہتی ہے اور کہ حزقیال نبی کی کتاب سے ہم کیا سیکھتے ہیں۔ تو آئیں ہم اپنی اسٹڈی کا آغاز کرتے ہیں۔ حزقیال نبی کی کتاب کو پروٹسٹنٹ ترجمہ نگاروں نے حزقیال نبی کی کتاب لکھا ہے، اس کا ترجمہ انہوں نے حزقیال کیا ہے، اور کیتھولک بائبل حزقیال ترجمہ کرتی ہے۔ نمبر 1، حزقیال کاہنوں کے گھرانے میں پیدا ہوا اور وہ خود بھی ایک کاہن تھا۔ اس کا رسالتی مشن 593 کافمیم میں شروع ہوا اور 22 سال تک جاری رہا۔ اس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ بھی ان میں سے ہے جنہیں 594 کافمیم میں بابل کی طرف بے دخل کر دیا گیا۔ نمبر 2، حزقیال کا اسرائیل میں بہت اثر و رسوخ تھا اور وہ یہودیت کا باپ کہلاتا تھا۔ اس کے اثر و رسوخ کی وجہ سے پاکیزگی کا قانون، جس کا مرکز لاویانہ تعلیمات تھا، حوالہ اسٹڈی کریں اخبار 17 سے 26، اور تثنیہ شرح میں موجود سوچ یا قانون کی دوسری کتاب بڑے پیمانے پر کاہنوں کے بیچ مقبول ہو گئی۔ جلا وطنی کی سرزمین میں حزقیال نے اپنے ساتھ جلا وطن ہونے والے ہم وطنوں کو سہارا دیا، ان کو ان کے ماضی پر غور و خوض کروایا اور ان کو مستقبل کے لیے پر امید رہنے کا حوصلہ دیا۔ ابھی حزقیال نبی کی کتاب کا مواد دیکھتے ہیں۔ اس کتاب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، یروشلم کی تباہی سے پہلے اور بعد میں۔ مجموعی طور پر کتاب بہترین طریقے سے تصنیف کی گئی ہے، مگر حزقیال نبی کے شاگردوں کے اشاعتی عمل کی وجہ سے کچھ عبارات غیر واضح ہیں۔ نمبر 1 پہ ہم دیکھتے ہیں تباہی سے پہلے۔ جو ظلف ابواب 1 سے 3 حزقیال کی بلاہٹ، اس کو مسوپتامیہ نہر کبار کے کنارے پر ایک رویا دکھائی دی، تند ہوا، ایک بڑا بادل جس کے گرد روشنی تھی، آگ اور 4 جانور جنہوں نے اس فضا کو سہارا دیا ہوا تھا جو پتھر کی طرح چمکتی تھی، اور اس کے اوپر ایک تخت جس پر کوئی بیٹھا تھا اور اس کے گرد روشنی اور آگ تھی۔ اس طرح سے خداوند کا جلال حزقیال پر ظاہر ہوا۔ خدا اسے ابن بشر کہتا ہے، اپنا روح اسے دیتا ہے، اسے کھڑا ہونے کے لیے کہتا ہے اور نبوت کرنے کے لیے اسرائیل بھیجتا ہے۔ جزبے ابواب 4 سے 24۔ حزقیال دشمنوں کے ہاتھوں ہونے والے یروشلم کے محاصرے کی پیشن گوئی کرتا ہے۔ اسرائیل میں بد اخلاقی، ظلم اور قتل و غارت تھا۔ ہیکل میں رکھے گئے مجسموں کی پوجا جاری تھی۔ اسرائیل ایک بے وفا بیوی کی طرح تھا اور اس کا گناہ گار غرور اس کے ارد گرد موجود غیر ملکیوں کے برابر تھا۔ بالآخر خداوند کا جلال ہیکل چھوڑ دیتا ہے اور یروشلم تباہ ہو جاتا ہے، جیسے کہ حزقیال کی پیشن گوئی تھی۔
587 काफ मीम। नंबर 2, तबाही के बाद हिजकियाल यरूशलेम की तबाही पर नोहा करता है, लेकिन सिर्फ आहोजारी की इजाज़त खुदा की तरफ से नहीं, जिसने बाद में नबी से इन पैगामात का ऐलान करवाना है जो इसराइल के लोगों को उम्मीद दिलाता है। जो ज़लफ़ बाब 25 से 32 तक दूसरे ममालिक के लिए सज़ा की पेशनगोई की जाती है, तो खुदा नहीं बल्कि महज इंसान है। 28 बाब की दूसरी आयत। अभी हम देखते हैं जुज़ बे बाब 33 से 39। पहली दफ़ा इसराइल की बहाली का ऐलान किया जाता है। जिस तरह बग़ैर दफनाई हुई और निखरी हुई हड्डियां ज़िंदा हो गईं, इसी तरह इसराइल भी ज़िंदा हो जाएगा। खुदा एक चौपान को मुकर्रर करेगा, लोग पाक किए जाएंगे और उन्हें एक नया दिल दिया जाएगा। मुस्तकबिल में खुदा एक नया अहद बांधेगा और मुल्क मुत्तहिदा हो जाएगा। माउज जो तमाम इसराइल के दुश्मनों की नुमाइंदगी करता है, तबाह कर दिया जाएगा। जोजीम बाब 40 से 48। इसराइल के मुस्तकबिल की पेशनगोई इसमें की जाती है। खुदा का जलाल यरूशलेम को लौट आएगा, नए इसराइल में अमन होगा और यरूशलेम एक ऊंचे पहाड़ की मानंद बुलंदियों को छुएगा। हैकल सच्चे खुदा की परस्तश का मरकज़ बन जाएगी और खुदा के मुक़द्दस शहर से आब हयात बकसरत बहेगा। अभी हम हिजकियाल नबी की किताब क्या कहती है, इसके अहम नकात पर ध्यान ज्ञान करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं। खुदावंद हिजकियाल पर ज़ाहिर होता है। पहला नुक्ता यह है, पहले बाब की तीसरी आयत। खुदावंद कुलदानियों के मुल्क में नहर कबार पर हिजकियाल बिन बूजी काहिन से हम कलाम हुआ। पहले बाब की चौथी से 5वीं आयत। तुंद हवा उठी, एक बड़ा बादल, उसके गिर्द रोशनी, उसके दरमियान से 4 हंसियों की शबी नज़र आई। खुदावंद का जलाल पहले बाब की 26वीं आयत। फ़ज़ा के ऊपर शबाहत तख्त पर किसी इंसान की सी सूरत उसके ऊपर नज़र आई। पहले बाब की 27वीं आयत। मैंने उसके अंदर से कमर की सूरत से ऊपर आग की सी शक्ल देखी और इसके गिरदो पेश झलक थी। पहले बाब की 28वीं आयत में हम देखते हैं, मैंने एक कलाम करने वाले की आवाज़ सुनी। हिजकियाल की खिदमत, दूसरे बाब की पहली आयत से दूसरी आयत। ऐ इब्ने बशर, अपने पाँव पर खड़ा हो। रूह मुझ में दाखिल हुई और मुझे मेरे पाँव पर खड़ा कर दिया, तो मैंने इसकी सुनी जो मुझसे कलाम करता था। दूसरे बाब की 8वीं आयत। तू सरकश घराने की तरह सरकश ना हो, अपना मुंह खोल और जो कुछ मैं तुझे देता हूँ इसे खा ले। तीसरे बाब की पहली आयत से तीसरी आयत। इस तुमार को खा जा और इसराइल के घराने से कलाम कर, मैंने खाया, शहद की मानद था। तीसरे बाब की 17 आयत। ऐ इब्ने बशर, मैंने तुझे इसराइल के घराने का पासबान बनाया है। गूंगा तमाशा एक पटड़ी। चौथे बाब की पहली आयत। एक पटड़ी ले और इसे अपने सामने रख और इस पर यरूशलेम शहर का नक्शा खींच, जैसे सो रहे हो। चौथे बाब की चौथी आयत। अपनी बाईं करवट पर लेट रह और इसराइल के घराने की बदी उस पर रख। जितने दिन तक तू लेटा रहेगा तू उनकी बदी की सज़ा उठाएगा। नापाक खाना। चौथे बाब की 12वीं आयत। तू जौ का फुलका खाएगा, इंसान के बराज से उसे पकाएगा।
जलावतनों की तरह 5वें बाब की पहली आयत। ऐ इब्ने बशर, अपने लिए एक तेज़ तलवार ले, उसे अपने सर पर और दाढ़ी पर फेर, और तराजू ले और बालों को तोल कर हिस्से बना। 5वें बाब की 12वीं आयत। तीसरा हिस्सा वबा से मर जाएगा और तीसरा हिस्सा वबा से मर जाएगा और तीसरा हिस्सा तेरे आसपास तलवार से मारा जाएगा, और तीसरे हिस्से को मैं चारों तरफ परागंदा करूँगा। ऊंची जगहों को मसमार करना। 6ठे बाब की तीसरी आयत। पहाड़ों और टीलों और नदियों और वादियों से मालिक खुदावंद यूँ फरमाता है, मैं ही तुम पर तलवार लाऊंगा और तुम्हारी ऊंची जगहों को मसमार कर दूंगा। बदले का दिन करीब है। 7वें बाब की 2 से 3 आयत। मालिक खुदावंद इसराइल की सरजमीन के हक़ में यूँ फरमाता है, सरजमीन की चारों अतराफ़ के लिए ख़ात्मा आ पहुँचा। मैं अपना गज़ब तुझ पर नाज़िल करूँगा और तेरी रवश के मुताबिक तेरी अदालत करूँगा, और मैं तेरे तमाम मकरूह कामों की सज़ा तुझ पर लाऊँगा। हैकल को नापाक किया गया। 8वें बाब की 3 आयत में। और रूह ने मुझे ज़मीन व आसमान के दरमियान बुलंद कर दिया और मुझे अलाही रोया में यरूशलेम में ले आई, यानी अंदरूनी दरवाज़े के उस मदखल के पास जिसका रुख शमाल की तरफ है, जहाँ गैरत का वो बुत जो गैरत दिलाता है नस्ब किया गया है। ऐ इब्ने बशर, तू देखता है कि वो क्या करते हैं, यानी वो नहायत मकरूह काम जो इसराइल का घराना यहाँ करता है, ताकि मैं अपने मकदस से दूर चला जाऊँ। इन पर निशान जिनको हलाक ना किया जाए। 9वें बाब की 4 आयत से 6 आयत। शहर के दरमियान से, हाँ, यरूशलेम के बीच से गुज़र और इन आदमियों के माथे पर निशान कर जो उन सब मकरूह कामों पर उसके दरमियान किए जाते हैं। शहर में से गुज़रो और मारो, लेकिन जिस पर निशान है उसके नज़दीक ना जाओ। हैकल से खुदावंद का जलाल। 10वें बाब की 18 आयत से 19वीं आयत। खुदावंद का जलाल हैकल के आस्ताना पर से उठा और करोबियों के ऊपर जा ठहरा। वो खुदावंद के घर के मशरकी फाटक के मदखल के पास ठहरे। अभी हम 11वें बाब की 6 आयत से 7वीं आयत में देखते हैं। देग में गोश्त। तुमने इस शहर में बहुतों को कत्ल कर दिया है और उसकी सड़कों को तुमने मकतूलों से भर दिया है। वो गोश्त हैं और देग यही है। खुदावंद उनके साथ है। 11वें बाब की 16वीं आयत। मैंने उन्हें कौमों में दूर कर दिया है और मुल्कों में उन्हें परगंदा कर दिया है, तो भी इन मुल्कों में जिनमें वो आ बसे हैं कुछ मुद्दत तक उनके लिए मकदस रहूँगा। 11वें बाब की 23वीं आयत। खुदावंद का जलाल शहर के दरमियान से उठा और शहर की मशरकी तरफ के पहाड़ पर जा ठहरा। जलावतनी की अलामत। 12वें बाब की 3 आयत में। ऐ इब्ने बशर, तू दिन के वक्त उनकी आँखों के सामने जलावतनी का सामान तैयार कर। तू उनकी आँखों के सामने अपने मकाम से दूसरे मकाम को जा। 12वें बाब की 5वीं से 6 आयत। उनकी आँखों के सामने दीवार पर छेद कर सामान निकाल, उसे कंधे पर उठा और अंधेरे में रवाना हो और अपना चेहरा ढांप ले ताकि तू ज़मीन को ना देख सके, क्योंकि मैंने तुझे इसराइल के घराने के लिए निशान ठहराया है। झूठे नबी। 13वें बाब की 3 से 4 आयत। मालिक खुदावंद फरमाता है, अफसोस इन अहमक अंबिया पर जो अपनी ही रूह की पैरवी करते हैं और उन्होंने कुछ नहीं देखा। ऐ इसराइल, तेरे अंबिया वीरानों पर की लोमड़ियों की तरह हैं। बुत परस्त।
14वें बाब की 3री आयत, इन आदमियों ने अपने दिलों में बुतों को नस्ब किया है और अपनी बदी की ठोकर को अपने चेहरों के सामने रखा है। ईंधन 15 बाब की 6ठी आयत, जिस तरह ताक की लकड़ी भी जंगल के दरख्तों की लकड़ी में से है, जिसे मैं आग के हवाले करता हूँ ताकि खाई जाए, उसी तरह मैं यरूशलेम के बशिंदों को भी हवाला कर दूँगा। इसराइल की बेवफाई 16वें बाब की 2री आयत से 2री आयत, ए इब्ने बशर, यरूशलेम को इसके मकरूह कामों से आगाह कर दे। 16वें बाब की 8वीं आयत, मैंने अपना दामन तुझ पर फैलाया और तेरी बरहनगी को छिपाया, और मैंने तुझ से कसम खाई और अहद बांधा, माल के खुदावंद का फरमान है और तू मेरी होगी। 16 बाब की 15वीं आयत, तूने अपने जमाल पर भरोसा किया, ज़ना किया और तू उसकी होगी। बाब 20-23 आयत और होशिया 2 बाब। अकाबों दियोदार ताक की तमसील 17 बाब की 2री आयत में, ए इब्ने बशर, इसराइल के घराने के लिए एक पहेली कह और एक मिसल बयान कर। 17 बाब की 8वीं आयत, ये फरवान पानी के किनारे पर अच्छे खेत में लगाया गया था ताकि डालियाँ निकाले और फल लाए और नफीस ताक अंगूर हो। 17 बाब की 22वीं आयत, मैं ही दियोदार की ऊंची ऊंची डालियों में से एक नरम कोम्पल काट लूँगा और इसे ऊंचे और बुलंद पहाड़ पर लगाऊंगा। हर कोई अपने अमल का ज़िम्मेदार है। 18 बाब 20वीं आयत, जिस शख्स ने गुनाह किया फ़क्त वही मरेगा। बेटा बाप के गुनाह की सज़ा नहीं उठाएगा और बाप बेटे के गुनाह की सज़ा नहीं उठाएगा। 18वें बाब की 21वीं आयत, अगर शरीर अपने तमाम किए हुए गुनाहों से बाज आकर रजू कर ले और मेरे तमाम कवानीन को हिफज करके अदल व सदाकत का काम करने लगे तो वो बिल ज़रूर ज़िंदा रहेगा और मरेगा नहीं। 18वें बाब की 24वीं आयत, अगर सादक अपनी सदाकत से बरगश्ता हो जाए और गुनाह करे और इन तमाम मकरूह कामों के मुताबिक अमल करे, वो अपनी बेवफाई और किए हुए गुनाहों के सबब से मरेगा। वो तमासील 2 तमासील इर्मिया 31 बाब 29 से 30 आयत का हवाला भी आप स्टडी कर सकते हैं। 19 बाब ये हिजकियाल की किताब 19 बाब की 2री आयत के साथ, तेरी माँ शेरों के दरमियान क्या ही खूबसूरत शेरनी थी। 19 बाब की 10वीं आयत, तेरी माँ पाकिस्तान में ताक की मानद थी जो पानी के किनारे लगाई गई है। उन्होंने गलत राह चुनी। 20वें बाब की 44 आयत, ए इसराइल के घराने, मैं ही खुदावंद हूँ, जब मैं तुम्हारी बुरी रविशों और बद अमाल के मुताबिक नहीं बल्कि अपने नाम की खातिर तुम्हारे साथ यूँ सलूक करूँगा। माल के खुदावंद का फरमान यूँ ही है। खुदा की नाराज़गी की तलवार 21 बाब की 8वीं से 9वीं आयत, देख मैं तेरे ख़िलाफ़ हूँ और अपनी तलवार म्यान से निकाल लूँगा। मेरी तलवार जनूब से लेकर शमाल तक हर बशर की मुखालफत में म्यान से निकलेगी। सादक और शरीर दोनों को काट डालूँगा। आग शहर को पाक करेगी। 22वें बाब की 20वीं आयत, जिस तरह चांदी या पीतल या लोहा या सीसा या कली भट्टी में जमा की जाती है और उस पर आग धोंकी जाती है ताकि पिघल जाए, इसी तरह मैं अपने कहर व गज़ब में तुम्हें पिघला दूँगा। 22 बाब की 30वीं आयत, मैंने इनके दरमियान ऐसे मर्द की तलाश की जो दीवार को बनाए और सरज़मीन के लिए इसके रखने में मेरे सामने खड़ा हो ताकि मैं उसे वीरान ना करूं, पर कोई ना मिला।
دو بہنوں کی تمثیل 23ویں باب کی 11ویں آیت، اور اس کی بہن ابلیبا یروشلم نے یہ سب دیکھا، پھر اپنی عشق بازی کے فساد میں اس سامرا سے بڑھ گئی۔ دیگچا آگ پر چڑھا۔ 24ویں باب کی 2 آیت، اے ابن بشر، دن کا نام، ہاں اسی دن کا نام لکھ رکھ۔ شاہ بابل نے عین اسی دن یروشلم پر خروج کیا۔ زوجہ حزقیال کی وفات۔ 24 باب کی 16ویں آیت، اے ابن بشر دیکھ، میں تیری آنکھوں کی پتلی ایک ہی ضرب میں تجھ سے جدا کر دوں گا، پر تو نہ ماتم کرنا، نہ رونا اور نہ اشک بہانا۔ دوسری اقوام کے خلاف فرمان۔ 25ویں باب کی 6 آیت میں، تو نے اسرائیل کی سرزمین کی بربادی پر تالیاں بجائیں۔ 25 باب کی 7ویں آیت، اس لیے دیکھ، میں اپنا ہاتھ تجھ پر بڑھاؤں گا اور تجھے قوموں کی لوٹ بنا دوں گا، اور تجھے ملکوں میں سے نیست و نابود کر دوں گا، اور تجھے ہلاک کر دوں گا، اور تو جانے گا کہ میں ہی خداوند ہوں۔ سور کے خلاف۔ 26ویں باب کی 2 سے 3 آیت، چونکہ سور نے یروشلم پر کیا ہے کہ وہ، اس لیے مالک خداوند یوں فرماتا ہے، دیکھ اے سور، میں تیرے خلاف ہوں۔ 27ویں باب کی 36ویں آیت، اقوام کے سوداگر تجھ پر پھپکارتے ہیں، تو جائے عبرت ٹھہرا ہے اور اب تک مہدوم رہے گا۔ 28ویں باب کی 2 آیت، حالانکہ تو خدا نہیں محض انسان ہے۔ مصر کے خلاف 29ویں باب کی 3 آیت میں، اے بڑے مگرمچھ جو دریائے نیل میں لیٹ رہتا ہے، اور مصر کے تمام باشندے جانیں گے کہ میں ہی خداوند ہوں۔ 30ویں باب کی 4 آیت، تلوار مصر پر آ جائے گی اور کوش سخت مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ سو میرے عزیزو، آج ہم نے حزقیال نبی کی کتاب، اس کے 30 ابواب تک کے اہم نکات پر دھیان و گیان اور ان کی اسٹڈی کی ہے۔ نیکسٹ اسٹڈی میں ہم اسے اگلے ابواب سے شروع کریں گے، 31ویں باب کی 2 آیت سے، کیونکہ حزقیال نبی کی کتاب کے ٹوٹل 48 باب ہیں، اس لیے باقی 18 ابواب کی اسٹڈی ہم نیکسٹ سیشن میں کریں گے، اور اس میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ حزقیال نبی کی کتاب میں سے ہم کیا سیکھتے ہیں۔ سو اپنے خادم ریورنڈ آرچ بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کو اجازت دیں۔ خداوند ہم سب کو برکت دے اور اپنے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے استعمال کرے، تاکہ ہم اس کے کلام کو جو اس نے ہم سب کو بخشا ہے دوسروں تک پھیلانے والے بن سکیں۔ ہم سب اس کلام کو پڑھیں، سنیں اور اس کلام پر عمل کریں، اور خدا کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکیں۔ خداوند ہم سب کو برکت دے۔ سو میرے عزیزو، آپ سب سے آخر میں ایک خصوصی گزارش بھی ہے کہ ضرور اس بائبل اسٹڈی کے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، تاکہ ہم سب مل کر خدا کے کلام
کی اس کے پاکستان میں خدمت کر سکیں اور اس کے غلہ کی نگہبانی بھی کرتے رہیں۔ سو خداوند ہم سب کو اپنی برکات اور فضائل سے مالا مال کرے، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے آمین۔